So knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello! Welcome back to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess for today. नमस्कार, अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में फिर से हम स्वागत करते हैं। मैं लॉरी डिडो। Today we're going to be unpacking some things from last week's episode. आज जो है पिछले सप्ताह की कुछ बातों को जो है हम खुलासा करने वाले हैं। But before we do, let's look at a scripture, John 5, verse 24. उसे करने से पहले हम जो कुछ वचनों को देखेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय के 24वां पद। Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। And because of this scripture, I can never die. परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं कभी मरूंगी नहीं। And my eternal home is in heaven. मेरा अनंत घर वो स्वर्ग में है। Because of that great news, we want to be sure that your eternal life is in heaven. और इस महान संदेश की वजह से हम बताना चाहते हैं कि आपका अनंत घर वो स्वर्ग में है। So I'd like to go back and look at some things we said in last episode. और मैं चाहती हूँ कि हम पीछे जाएं और पिछले सप्ताह जो कुछ बातें बताए हैं उसे हम फिर से देखें। You see, the thing that Jesus wanted from me was pain. जो चीजें प्रभु यीशु मसीह से जो चाह रहा था वो ये है कि वो दर्द है। Jesus' goodness is beyond our understanding. यीशु की भलाई हमारे सोच से भी परे है। Let's look at Matthew 11:28 through 30. आप जो है मत्ती 11 अध्याय के 28 से लेकर 30 पद तक देखें। It says, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। And then in Psalm 34 verse 18 we find that it says, "The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as a contrite spirit." और हम देखते हैं भजन 34 के 18 पद में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। We're going to study and understand the topic of trust in an episode yet to come. और आने वाले सत्र में जो है हम भरोसा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। But for salvation to happen, you must trust Jesus. मगर उद्धार होने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना जरूरी है। Because without this trust, you will be unable to give him that pain. क्योंकि इस भरोसा के बिना आप जो है अपना दर्द उसे दे नहीं पाएंगे। Jesus needs our permission to take it away. यीशु मसीह के लिए हमारी अनुमति जरूरत है कि उसे हमसे दूर करने के लिए। Now, I was willing to commit suicide because of the amount of pain that I had inside of me. मेरे अंदर इतना सारा दर्द था, इस वजह से मैं अपने आप को हत्या करने की कोशिश में थी। And I'd like to try and explain some of the things that got me to that point. और मैं कुछ बातों के विवरण करना चाहती हूँ, क्योंकि बताने के लिए उस हद तक मुझे क्या लेके आया है। I'm going to identify 8 things for you, but there may be more. और मैं आपके लिए 8 चीजों को पहचानना चाहती हूँ, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। My life was filled with regret. मेरे जीवन में पछतावे से भरा हुआ था। And when you have that much regret in your life,
It's hard to breathe. अगर आपके जीवन में इतना पछतावा हो तो आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। You know, I help people find Jesus in America. और मैं लोगों के लिए मदद करती थी अमेरिका में कि वो यीशु मसीह को पाएं। And one of the easiest questions to ask someone is this question. और बहुत ही एक आसान सवाल जो हर एक से पूछ सकते हैं वो ये है, If you could get rid of one regret in your life, the biggest regret, what would it be? अपने जीवन में से एक पछतावा से अगर आप छुटकारा पाना चाहेंगे वो सबसे बड़ा पछतावा क्या है? And for the people who will answer, their answer is remarkable. जो लोग जो उत्तर देंगे उनका उत्तर जो है बड़ा लाजवाब उत्तर होता है। When I explain to them that Jesus can cover that regret, many times tears come to people's eyes. जब मैं उन्हें समझाती हूँ कि यीशु मसीह उस पछतावे को ढक सकता है तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आंसू निकल आता है। Many people find Jesus by just getting rid of regret. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तब पाते हैं जैसे वो अपने जीवन की पछतावा से छुटकारा पाते हैं। Number 2, hopelessness. दूसरा, निराशापन। The Bible shares with us that hope deferred will make your heart sick. और बाइबल हमें सिखाता है जब हमारे जीवन से आशा टूट जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। And hopelessness is much deeper than just depression. और निराशा जो है आपके जीवन में तनाव से भी बहुत ही गहरा है। Number 3 is to be shamed. तीसरी बात, अपमानित महसूस करना। It's hard for you to show your face when you are shamed. जब आप अपमानित महसूस करते हैं बहुत कठिन हो जाता है चेहरा दिखाने के लिए भी। Number 4 is having so many failures. चौथी बात, बहुत सारे हार को पाना। And unlike Thomas Edison, who created the light bulb, many of us don't keep trying. जिसने बिजली की बल्ब बनाई थी थॉमस एडिसन के अलावा बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार को सह नहीं सकते हैं। Number 5, to have so many misunderstandings. पांचवी बात, बहुत से गलतफहमियां होना। When people didn't understand your reasoning and so they thought bad things. लोग जब आपके वजह को समझ नहीं पाते हैं तो आपके बारे में बुरी बात को समझ लेते हैं। I believe these lead to number 6. और विश्वास करते हैं ये हमें छठी बात में ले चलता है, Self-condemnation. अपने आप को दंड की आज्ञा देना। And once you are on this one, it is a very quick fall. जब आप एक बार इसमें आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी ही गिर पड़ेंगे। Self-condemnation takes you to a place where it's very hard to try. अपने आप को दंड की आज्ञा देना जो आपको वहां तक ले चलता है जिसके लिए बहुत कठिन होता है प्रयास करना। Number 7 is self-hatred. सातवीं बात, अपने आप में भय रखना। Once you reach this one, you curse your own life. जब आप इसमें पहुंच जाते हैं तो अपने जीवन के प्रति आप खुद श्राप देते हैं। Number 8, I call secrets. आठवीं बात मैं कहती हूँ गुप्त बातें। And these are secret things that you have done. और ये ऐसी गुप्त बातें जो आपने किया है, Or terrible secrets of things that people have done to you. या बहुत से बुरी गुप्त बातें जो आपके लिए लोगों ने किया है। This is the kind of pain that Jesus was asking me for. और इस प्रकार के दर्द ही यीशु मसीह मुझसे मांग रहे थे। And he wouldn't quit. He needed me to give him this. वो हार नहीं मान रहे थे, वो किसी तरीके से चाह रहे थे मैं उसे दे दूं इसे। You know, it's caused me to think about those wounds that are right here on his body. और वो मुझे जो है इस शरीर में जो हुई चोट के बारे में याद दिला रहा था। And the question, why would Jesus do this, is a very important question. और मेरे लिए सवाल ये था कि यीशु ऐसा क्यों करना चाहेंगे। And his answer to that question will change your life. उस सवाल की उसकी उत्तर आपके जीवन को बदल देगा। You see, the answer is for me and for you. और ये उत्तर आपके लिए और मेरे लिए है। He is a great, great God. वो महान परमेश्वर है। And no one cares about your pain the way that the Lord Jesus Christ cares. कोई भी आपके दर्द के बारे में ख्याल नहीं रखता जैसे यीशु आपका ख्याल रखते हैं। To help me with my trust, he showed me this room filled with presents. और मेरे भरोसे के ऊपर कार्य करने के लिए यीशु मसीह ने ऐसे कमरा दिखाया जो मेरा है कई उपहारों से भरा हुआ था। Let me tell you what some of these presents represent. कुछ उपहारें क्या है करके मैं आपको बताना चाहती हूँ। Stability, encouragement, and wisdom. स्थिरता, प्रोत्साहन और बुद्धिमत्ता।
skills, endurance, or rest. कुछ गुण या उसमें जारी रखना या विश्राम। These are all gifts that money cannot buy. ये ऐसे उपहार हैं जो पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। Jesus is the Prince of Peace. यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है। And while you're holding on to all that pain, there is no peace in your life. जब तक उस दर्द को आप पकड़े रखेंगे, आपके जीवन में शांति नहीं है। You see, when I saw Jesus dancing with that bride, जब मैंने यीशु मसीह को उस दुल्हन के साथ नाचते हुए देखा, when I desired something so badly, और तब मैं बड़े बुरी तरीके से एक चीज की चाहत रखी, that's what broke the self-condemnation and the self-hate in me. और मेरे अंदर की आप अपने आप की भय और दंड की आज्ञा की भाव को तोड़ दिया। I was willing to give Jesus all these terrible secrets मैं इच्छुक थी मेरे जीवन के सारी ये गुप्त बातों को प्रभु को दे दूं, because suddenly I had value. क्योंकि अचानक मेरे लिए एक मूल्य आने लगा। I will love him forever because now I have value. मैं अनंत के लिए उससे प्रेम करूंगी क्योंकि मेरे लिए अब एक मूल्य है। And if you are in that position of needing value, I want to introduce you to Jesus. अगर आप उस स्तर में हैं जहां आपके जीवन के लिए मूल्य जानना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यीशु का परिचय दिलाना चाहती हूँ। You know, Jesus already knows. यीशु मसीह पहले से ही जानते हैं। In Proverbs 13:12, नीति वचन 13 अध्याय 12 पद में says, "Hope deferred makes your heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life." जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शीतल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। And in Proverbs 4:23 it says, और नीति वचन 4:23 इस प्रकार कहता है, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life." सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Jesus Christ has a wonderful plan for our lives. हमारे जीवन के प्रति यीशु मसीह के पास अद्भुत योजनाएं हैं। And because of the transformation and because I have value, क्योंकि उस परिवर्तन के वजह से और मेरे लिए एक मूल्य है, Jesus is my life. यीशु ही मेरा जीवन है। I always thought people must be crazy when they said that. और मैं हर वक्त सोचती थी लोग पागल होंगे जब इस बातों को कहते थे। No, this great mystery of being loved. नहीं, ये बड़े भेद की बात कि आप प्रेम किए गए हैं। When he loved me, he took my life. जब उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मेरे जीवन को ले लिया। And now I can never die. हाँ, अब मैं मर नहीं सकती हूँ। In John 5:24 it says, यूहन्ना 5 उसके 24 इस प्रकार कहता है, "Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he who hears my words and believes in him who sent me जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, has eternal life. अनंत जीवन उसका है। He shall not come into judgment, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, but he is passed from death into life." परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। I was living a terrible life. मैं एक बुरी जिंदगी जी रही थी। My life was wrapped in secrets, मेरे जीवन गुप्त बातों से घिरा हुआ था, with so much self-hatred that I was willing to take my life, अपने आप से इतना घृणा करती थी कि मैं अपने आप को मार डालूं, with so much condemnation in my life that I couldn't even try. अपने ऊपर इतना दोष देती थी कि जिससे मैं अपने जीवन जी नहीं पाती थी। But he asked to give him something. मगर उसने मुझसे मांगा कुछ चीज देने के लिए। He wants your permission so that he can take it away. वो आपकी अनुमति चाहते हैं कि वो आपके दर्द को दूर करने पाए। Jesus is a giver. यीशु मसीह देने वाले हैं। And remember he said that some of the gifts he wanted to give me was that he had to take something away. आपको याद होगा उसने कहा कि कुछ उपहार वो जो मुझे देना चाहता है कि वो ये है कि कुछ चीज मेरे जीवन से वो निकालना चाहते थे। So God wanted me to explain what I went through so that he could help you. और इसीलिए परमेश्वर चाहता कि इस बातों के बारे में विवरण करूं जिसमें से मैं गुजरी हूं, जिससे कि वो आपके लिए मदद कर सके। So I want you to consider this question.
और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस सवाल के बारे में आप जरा सोच के देखें। If you could get rid of any regret and hopelessness, what would you ask God to take away? अपने जीवन की कोई भी निराशा या कोई भी पछतावा से आप जो छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो कौन सी पछतावा है? If you could turn back time and get rid of any failure, what do you need Jesus' help with? अगर अपने जीवन के समय में पीछे मुड़ के जाना चाहेंगे, तो कौन सी ऐसे हार है जो यीशु मसीह जो चाहते हैं कि उसे दूर करें? If you could undo a misunderstanding and make things right, what would you do? अगर अपनी गलतफहमियों को फिर से जाकर सुधारना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? I know you've tried and failed because I've done that too. हाँ, मुझे मालूम है कि आपने कोशिश किया होगा और हार गए होंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे करके देखी है। But there is a God of hope who can help. मगर हमारे लिए एक आशा का परमेश्वर है जो हमारे मदद कर सकते हैं। His name is Jesus Christ. उसका नाम मसीह यीशु है। He's known as the Lord God Almighty. और वो उसका नाम सर्वशक्तिमान है। And that word Almighty means that He can do it. सर्वशक्तिमान उस शब्द का मतलब है वो जरूर कर सकते हैं। So for those of us who feel very broken, और लोग जो टूटा महसूस करते हैं, God wants to take that brokenness away. और परमेश्वर उस टूटेपन को दूर करना चाहते हैं। I know we haven't covered the trust issues yet. हाँ, मैं जानती हूँ कि भरोसा की समस्या के साथ अभी तक हमने कार्य नहीं किया है। But if you will trust Jesus to take away your pain, you can have a full life. अगर आप यीशु मसीह पे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपके दर्द को दूर कर सकते हैं, तो आप संपूर्ण जीवन पा सकते हैं। Let me pray that with you. मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। Oh Lord Jesus, I need your help. हे प्रभु यीशु, आपकी मदद मेरे लिए जरूरत है। I have a life that has so much pain in it. मेरे जीवन में ऐसे दर्द से भरा हुआ है। God, I have regret and hopelessness and shame. प्रभु मेरे अंदर जो है पछतावा, निराशा और अपमान है। Lord, I have countless failures and misunderstandings. अनगिनत हार और मेरे जीवन में बहुत सारा जो गलतफहमियां हैं। Lord Jesus, I am stuck in self-condemnation and hatred. प्रभु यीशु मसीह, अपने आप के बारे में घृणा करना और अपने आप में दंड की आज्ञा देने में फंसा हूँ। I don't know how to trust. मुझे नहीं मालूम कैसे भरोसा करना है। But I will believe that you will help me. मगर मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मदद करेंगे। I believe you are the Lord Jesus Christ. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह हैं, the Almighty God, सर्वशक्तिमान प्रभु, who desires to help me. जो इच्छा रखते हैं कि मेरे लिए मदद करने के लिए। This is all I need to know. I give you my life. और सिर्फ यही मैं जानना चाहती हूँ, मैं अपनी जीवन देना चाहती हूँ प्रभु। And because of this, I will have in return और इस वजह से मेरे लिए वापिस पलटा ये मिलेगा, your stability and your encouragement. आपकी स्थिरता और आपकी प्रोत्साहन। I'll have wisdom from heaven and skills to live. स्वर्ग से मेरे लिए बुद्धि और गुण जो मेरे जीवन के लिए जीने के लिए। I will endure. I will not quit. और मैं जारी रखूंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। And I welcome the Prince of Peace to bring me rest. शांति की राजकुमार को मैं स्वागत करती हूँ कि मुझे विश्राम मिले। I believe you, Jesus. यीशु, आप में विश्वास करती हूँ। In the mighty name of Jesus we pray. Amen. यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। I thank you so much for joining today. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके लिए धन्यवाद। And if you have something to tell me about today's episode, please write in. अगर आज के सत्र के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेहरबानी करके लिख के बताइए। I look forward to hearing from you. Bye-bye. आपसे सुनने के लिए बेताब हूँ। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।